Hello, dear students. How you all are? I hope that you all have completed question answers up to chapter number 7 and also understood it well. Today, we will discuss chapter 8 water scarcity and conservation of water. So, let's start it. We have already learned about the importance of water in our life. We can live without food for some days but cannot live without water for long. The earth is called a blue planet because three-fourths of its surface is covered with water. So what does it want to say? It's saying that water is extremely important for all of us. We can even live without food but not without water. And our earth is called a blue planet. Why? Because the three-fourths इसका part है that is covered with water. Most of this water exists in ocean, जिसमें से mostly जो part है वो ocean का है. The ocean water is salty and cannot be used for daily needs. जो salty water होता है ocean का उसको हम daily use के लिए नहीं use कर सकते हैं. Only a small part of water is fresh water. This is present in rivers, streams or lakes and can be used by us for our daily needs. जो फ्रेश वाटर हम यूज कर सकते हैं वो कहाँ होता है? दैट इज प्रेजेंट इन rivers, streams and lakes. This means that the amount of water available for our survival that is limited. The limited amount of fresh water is further decreased due to various factors. Hence there is scarcity of water. Scarcity का मतलब होता है बेटा कमी, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है उसमें भी बहुत इम्प्योरिटीज हैं, सो वी कैंट यूज दैट डायरेक्टली. सो देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर कॉजिंग इट्स शॉर्टेज? इसकी शॉर्टेज क्यों हो रही है, किन किन फैक्टर्स की वजह से? तो पहला क्या है? पॉपुलेशन. With increase in population, the demand for water has also increased. This is quite obvious. Most people feed more water, but the supply is not increasing. Hence, the amount of water available for each person is decreasing. Deforestation. Rain and snow are the two main natural sources of water. However, the amount of rainfall and snowfall is decreasing due to change in climate. These changes are caused by various undesirable human activities. So क्यों होती है deforestation? Because of the rainfall and snowfall जो है वो बहुत ही डिक्रीज होता जा रहा है क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से. एंड ये क्यों क्लाइमेट में चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ अनडिजायरेबल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन. जब रेनफॉल वगैरह में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कि पेड़ों को काटना. ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. सो जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा धीरे धीरे there will be less amount of rainfall and snowfall. So क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जाएगा, रेनफॉल कम होगा, और रेनफॉल कम होगा तो वाटर सोर्स में वाटर भी कम मिलेगा, इसीलिए धीरे धीरे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगी. सो व्हाट वी शुड डू? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज देन बीइंग कट. जितने भी पेड़ काटे उससे ज़्यादा हमें पेड़ों को लगाना चाहिए. थर्ड रीजन क्या है? सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रहती हैं दैट ऑल आर सेट अप फॉर डिफरेंट प्लेसेज. एंड जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं देयर इज डिमांड ऑफ वाटर इज सो मच, सो दे नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर and they fulfill this need by using underground water which is used for drinking purpose. उसको ये फैक्ट्री जो रहती हैं वो वहाँ पे यूज कर लेती हैं. अब अंडर वाटर जो है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, अंडर वाटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड अगर इसको फैक्ट्रीज ने यूज कर लिया तो उसमें और स्कैर्सिटी हो जाएगी.
So how can we conserve water? Need for conserving water. Water is the gift of nature for all the living beings. It is precious. ये बहुत बहुमूल्य है. Precious मतलब बहुमूल्य. If we continue to waste our water sources carelessly, the time can come out when there is not be enough water for all of us. The crops can also die due to lack of irrigation. Irrigation मतलब क्या होता है? सिंचाई करना. तो जो क्रॉप्स रहती है, अगर आप उनकी सिंचाई नहीं करोगे, सिंचाई करना मतलब उनको पानी देना, तो अगर आप उनको रेगुलर पानी नहीं दोगे तो फिर वो क्रॉप्स भी ख़त्म हो जाएंगी. वी शुड देयरफॉर मेक सिंसियर एफर्ट. सिंसियर एफर्ट मतलब बहुत समझदारी से हमें एफर्ट्स मतलब कि ट्राई करना चाहिए ताकि हम वाटर को सेव कर सकें, ताकि वो हमारे फ्यूचर में भी अवेलेबल रहे. वी कैन सेव वाटर बाय अवॉइडिंग इट्स ओवर यूज एंड वेस्टेज. इसके ओवर यूज और वेस्टेज को हम अवॉइड करके वाटर को सेव कर सकते हैं. Proper and careful utilization of water, avoiding its wastage and maintaining the amount of water in the different sources is called water conservation. Water conservation क्या होता है? Water conservation मतलब पानी को बचाना. तो इस मेथड में क्या करते हैं? प्रॉपर यूज करते हैं वाटर का, इसका वेस्टेज नहीं करते हैं और मेंटेन रखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है. So how can we conserve water? Ways of conserving water. तो पहला क्या है? We can avoid wastage of water in our daily life by adopting the following measures. Measures मतलब जो नीचे के जितने भी टिप्स आपको दी गई हैं, जो जितने भी उपाय बताए गए हैं जिससे कि आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, डेट ऑल आर कॉल्ड measures. क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट. टैप को यूज करके उसको आपको टर्न ऑफ यानी कि बंद कर देना चाहिए. सेकंड क्या है? डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ आर वॉशिंग हैंड्स. जैसे लोगों की हैबिट होती है कि जब वो लोग ब्रश करने जाते हैं तो स्टार्टिंग में दे टर्न ऑन द टैप टू क्लीन देयर टूथब्रश एंड आफ्टर दैट दे केप्ट इट रनिंग. वो लोग जितने देर ब्रश करते हैं तो देर नल को ओपन रखते हैं. तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस हैबिट. यूज अ मग एंड बकेट टू सेव बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. जैसे बहुत लोगों को शावर से नहाना पसंद होता है, बट शावर से पानी में हमेशा बहुत ज़्यादा शावर से नहाने में हमेशा बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज अ मग एंड बकेट टू टेक बाथ. फोर्थ क्या है? वाटर द प्लांट्स विथ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ पाइप. इंस्टेड ऑफ मतलब होता है उसकी जगह पे. अगर आप पाइप से पानी डालते हो तो वो यूजुअली बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, इसीलिए उसको बकेट और मग से पानी डालना चाहिए. टेक ओनली दैट मच वाटर इन टम्बलर दैट यू कैन ड्रिंक. इट मीन्स वॉट, आप जितना पानी पी सको आपको सिर्फ उतना ही ग्लास में लेना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया, थोड़ा सा पिया उसको फेंक दिया. दैट्स अ बैड हैबिट. एंड इफ़ यू हैव टू थ्रो द वाटर, अगर आपको वाटर को फेंकना ही पड़े तो आप इसको अपने सिंक पे मत फेंकिए. यू कैन पोर इट ओवर प्लांट्स. आप इसको प्लांट्स में डाल सकते हो. डू नॉट थ्रो अवे वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, राइस एंड पल्सेस. यूज इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स. जो भी वेजिटेबल और राइस को क्लीन करने के लिए वाटर यूज होता है उसको आपको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हो. गेट द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली. जितनी भी पाइप्स और टैप जो लीक होते रहते हैं उनको आपको तुरंत ही रिपेयर कराना चाहिए. वी कैन ऑब्जर्व वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इन द फॉलोइंग वेज. कैसे कर सकते हैं? लार्ज स्केल पे कैसे कंजर्व कर सकते हैं? जितना ओवर इरिगेशन है फील्ड का शुड बी चेक्ड. चेक्ड का मतलब होता है रोकना. तो जितना भी ओवर इरिगेशन है उसको हमको रोकना चाहिए. वाटर को डालने के लिए हमें वाटर स्प्रिंकलर यूज करना चाहिए. आप देख सकते हो कि इस तरह से वाटर स्प्रिंकलर होता है. आपने ऐसा देखा होगा कि कई खेतों में ऐसा लगा रहता है. इसको ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर कहते हैं. और इस तरह से मैनुअल हाथ में लेके भी स्प्रिंकल कर सकते हैं.
मतलब जिसको बोलते हैं छिड़काव करना। तो इस तरह से आप वाटर को देना चाहिए ताकि वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस तक फैला भी सके पानी को, और इरिगेशन में ज़्यादा वाटर भी यूज ना हो, तो इससे वेस्टेज रिड्यूस होती है। देन रीजन्स विच गेट हैवी रेनफॉल आर ऑफन फ्लडेड। जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आप रेन वाटर का करेंगे तो वो उसके डिस्ट्रक्शन को भी रोकेगा, यानी कि फ्लड को भी रोकेगा, और वाटर भी कंजर्व करेगा। जैसे कि डैम्स का फॉर्मेशन। अब डैम्स क्यों बनाते हैं? इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड मैंने बनाना टू चेक फ्लड्स। फ्लड्स मतलब क्या? बाढ़। They also help to preserve large quantity of water. So it is very important to carefully plan the size, location and use of dams. और क्या कर सकते हैं? We all need to do as much harvesting of rain water as possible. Harvesting मतलब खेती करना। तो आप कैसे रेन वाटर की खेती कैसे कर सकते हो? इस चीज़ को ही बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो सिटीज़ में जैसे कि रेन वाटर अगर छत पे टेरेस पे जाता है तो फिर वो डायरेक्टली ड्रेन में चला जाता है। तो क्या करते हैं कि लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं जिसमें सारे को आप ग्राउंड में इकट्ठा कर लेते हो। तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर जो रहता है वो इंक्रीज होता है। एंड आपके जो ग्रेन वाटर रहते हैं ये हमेशा ओवरहेड टैंक्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, यानी कि जो छत पे जहाँ पानी गिर रहा है आपने वहाँ पे एक बड़ा सा टैंक कर दिया, देन वो सारा वाटर उसमें स्टोर हो जाएगा एंड देन वी कैन री यूज इट। Sometimes it is also important to use it at every home, school, office, and factory. We must take care to conserve water and preserve it for future. All of us need to realize that every drop of water is important for sustaining life on earth. सस्टेनिंग मतलब बनाए रखने के लिए लाइफ को अर्थ पे वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल ऑफ अस मस्ट देयरफॉर टेक अ प्लेज टू डू आवर बिट टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। हम सभी को ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम वाटर की हर एक बूंद को बचाएंगे। सो आई होप दैट यू हैव स्टडी दिस चैप्टर वेल। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाएगा तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर अ लॉट, हैव अ नाइस डे।